Hello everyone, welcome you all. And today we are going to study about the stem. So this is a part of the chapter morphology of flowering plant. What do you mean by morphology? Logy का मतलब होता है study. Okay? Logy means study and morpho means the study of the external feature. Logy means study and morpho means the external features. So here we are going to study the external feature of the flowering plants. So let's begin this topic. So we will start with the stem. Okay? Stem से start करते हैं. So actually what do you mean by stem? What is a stem? You know that stem is the ascending part. It is moving up. So we can say it is the ascending part of the plant. Whereas the roots are considered to be the descending part. It is moving downward. So we can call them the descending part. Okay? Is it clear? Now, when the seed germinates, you know that the first thing which comes out is the plumule and the radicle. ठीक है, ये जो है ऊपर का टिप जो होती है वो होती है plumule and this lower one is the radicle. The plumule lower portion, this portion is called apicotyle and this is radicle के ऊपर का जो portion है उसे बोलते हैं hypocotyle. Okay, so this plumule and the epicotyle, they will form the shoot part. So we can say that the stem arises from the plumule. Plumule से ही stem बनती है. Future में stem किससे बनती है? Plumule से. Now, all of you have seen the stem. Stem जो आप ध्यान से देखोगे तो बीच बीच में यहाँ पे ऐसे structures होते हैं उठे हुए, उनको बोलते हैं nodes. यहाँ से node से या तो एक branch या एक leaf निकलती है ना? Branches or leaf arise from these nodes. So this is the node and the part between the node, ये दो node के बीच की जो जगह है, this is called internode. बहुत इजी सी बात है, नोड के बीच का जो एरिया है उसे इंटरनोड बोलेंगे. क्लियर? अब जो स्टेम होती है उसके टिप पे जो एक बड प्रेजेंट होती है, यहाँ पे एक बड प्रेजेंट है तो दिस बड इज कॉल्ड द टर्मिनल बड. This bud is the terminal bud. If this bud is present here at the axil, ये एक axil है, यहाँ पे अगर ये bud present है तो इसे बोलेंगे axillary bud. Axillary bud is also called lateral bud and terminal bud is also called apical bud. Okay, तो ये दोनों bud है, टर्मिनल एंड पे है, द टिप पे प्रेजेंट है तो वी कॉल इट टर्मिनल बर्ड, और एक्सिल पे प्रेजेंट है देन वी कॉल इट एक्सिलरी बर्ड. ठीक है, बर्ड में क्या होता है, बर्ड जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बनी होती है. दे हैव द टेंडेंसी टू डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म द लीव्स and your flowers, branches and all the parts of the plant. So this is what we call bud. Now when you see the stem at a mature stage, then it will be woody or it will be brown in color. If you see it on the young stage, अगर आप कोई नया नया पौधा निकला है उसे आप देखेंगे तो उसकी जो स्टेम होती है that is green in color. ठीक है, और जैसे ही मैच्योर होता जाता है प्लांट, एक बड़ा हो जाता है, जैसे आपने नीम का पेड़ देखा होगा, उसकी जो स्टेम है that is woody and it is brown in color, right? So these are the some of the characteristics of the stem. So in this figure also you can see that the terminal bud which is present at the top, this bud is the terminal bud and this bud is the lateral or axillary bud. Okay, और ये है जो है जहाँ से branches और leaves निकल रही हैं, ये जो part है this is what we call nodes and between the two nodes that area is considered to be the internode, right? And here we have the roots. You can see that the plant will grow towards light. We can say the stem grow towards the light. So we can say that they show positive phototropic movement. Now, क्या रूट भी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है?
क्या रूट ऊपर की तरफ निकलती है? नहीं, दे ग्रो डाउनवर्ड टुवर्ड्स दी ग्रेविटी, टुवर्ड्स दी अर्थ. So we can say they show negative phototropic movement, or it is also called positive geotropic. Okay, geotropic तो इनका पॉजिटिव है, बट फोटोट्रॉपिक मूवमेंट क्योंकि लाइट की तरफ मूवमेंट नहीं है तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव, राइट. और जो स्टेम है वो लाइट की तरफ मूव कर रही है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया, और इसका नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता है स्टेम का. ओके, ये क्लियर है. नाउ नेक्स्ट इज, सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट द स्टेम. देखो आप जनरली स्टेम देखते हो उसमें नोट दिखते हैं, एंड नोट दिखते हैं, ये सब आप जानते हो अच्छे से, लेकिन देयर आर सम स्टेम व्हिच आर मॉडिफाइड. ठीक है, तो वो हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में. कुछ स्टेम जो है मॉडिफाइड हो गई है, कुछ स्टेम में फूड भर गया है, कुछ स्टेम जो है प्रिकल्स बन गई है, या वी कैन से थॉर्न्स बन गई है अपनी सेफ्टी के लिए, अपने प्लांट को बचाने के लिए. और कुछ स्टेम जो है फोटोसिंथेसिस भी करती है, ग्रीन कलर की होती है, फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाती है. तो दीज आर द स्टेम मॉडिफिकेशंस. ठीक है, तो हम देखेंगे 3 टाइप की मॉडिफिकेशन, दैट इज द अंडरग्राउंड, देन सब एरियल एंड द एरियल. ठीक है, अंडरग्राउंड देखिए अभी हमने देखा कि स्टेम ऐसे ग्रो कर रही लाइक दिस. अगर यही स्टेम नीचे की तरफ ग्रो करने लग जाए और इसके ब्रांचेस हैं लाइक दिस, ये ब्रांचेस निकल रही है इसकी. ठीक है, सो ये क्या हो गया? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हो गई. अब ये जो ब्रांचेस निकल रही है ये स्वेलन हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? ट्यूबर बन जाए. ऐसे पोटैटो आपने देखे ऐसे लगे हुए होते हैं ना अंदर की तरफ, तो पोटैटो है क्या? स्टेम की ब्रांचेस जो है स्वेलन हो गई है, उससे क्या बन गया है? एक ट्यूबर जैसा स्ट्रक्चर बन गया है. दैट इज व्हाट वी कॉल पोटैटो. ये ट्यूबर है, पोटैटो बोलते हैं इसको ना. सो दिस इज द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन. देख रहे हैं आप कि अंदर ही कुछ मॉडिफिकेशन हो गई है स्टेम में. सब एरियल आप देखेंगे कि ना तो ये पूरी एयर में है, ना ही बिल्कुल ग्राउंड में. कहाँ पे है? बिल्कुल यहाँ पे. अगर यहाँ पे ये ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है, स्टेम जो है ऐसे लेट रही है ना, ग्राउंड के पैरेलल चल रही है. सो दिस इज द सब एरियल मॉडिफिकेशन. और एरियल में आप देखेंगे कि जो भाई एयर में पार्ट है, बिल्कुल एयर में, ये पार्ट एयर में है, यहाँ पे कुछ एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होती है, हमने देखा था यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट है. अगर ये एक्सिलरी बर्ड क्या बन जाए? थॉर्न्स बन जाए, ऐसे कांटे जैसे. ये एक्सिलरी बर्ड ऐसे टेंड्रल जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, तो ये भाई एक्सिलरी बर्ड इज अ पार्ट ऑफ द स्टेम. नाउ दे आर मेकिंग थॉर्न्स एंड द टेंड्रल्स, सो दे आर द एरियल मॉडिफिकेशन. ये एयर में जो पार्ट है उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है ना, सो वी कॉल इट अ एरियल मॉडिफिकेशन, isn't it? So this we will study in today. So we have seen underground modification, subaerial and the aerial. Underground, पहले हम underground में डिस्कस करते हैं. और अंडरग्राउंड को लर्न करने का एक निमोनिक बनाया मैंने, दैट इज कॉल्ड ब्यूड कोड. ब्यूड CORD कोड. ठीक है, ब्यूड कोड एक निबोलाइजर होता है जो दिया जाता है मेडिसिन एक तरह से, बस ये याद रखिए ब्यूड कोड. तो BU से तो हो गया आपका बल्ब. ओके, BU से हो गया आपका बल्ब और कुछ नहीं है. DE से कुछ नहीं है. CO से आपका हो गया कॉर्म. R से हो गया राइजोम एंड T से हो गया ट्यूबर. तो हम पहले इन 4 को डिस्कस कर लेते हैं, है ना. अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं. तो पहले हमने क्या देखा, नाम लिख लेते हैं, बल्ब, ट्यूबर, कॉर्म. ओके, bulb, tuber, corm and the rhizome. So bulb का example is the onion and there is a garlic. लहसुन जानते हो, अनियन जानते हो, सबने देखा है. ठीक है, अनियन में क्या होगा? छोटी सी डिस्क, बहुत ही रिड्यूस्ड स्टेम होती है, बहुत ही छोटी सी स्टेम है. ये जो स्टेम है वेरी रिड्यूस्ड एंड दीज आर द लीव्स, है ना. ये फ्लैशी लीव्स होती है अंदर की तरफ. बाहर वाली जो लीफ है वो जो छिलका होता है अनियन का, वो स्केली लीफ होती है, और अंदर वाली जो आप खाते हो वो फ्लैशी लीव्स होती है, वो लीव्स होती है एक्चुअली, है ना. दिस इज द स्टेम. और इस स्टेम से आप देखेंगे कि ऐसे ये जो स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं क्या है? दे आर द रूट्स एंड दीज रूट्स आर द एडवेंटिशियस रूट्स, क्योंकि भाई स्टेम से निकल रही है ना. अगर रूट रेडिकल से बन रही है, अगर ये वाला स्ट्रक्चर रूट बना रहा है, ये रूट बना दे,
तो हम उसे बोलेंगे क्या, ट्रू रूट, है ना। बट ये तो आपकी स्टेम से बन रही है, स्टेम से निकल रही है, तो इनको बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स, इजंट इट। सो दिस इज अ बल्ब, बल्ब जैसा स्ट्रक्चर हो ना अनियन का, याद रहेगा अनियन इज द एग्जांपल ऑफ बल्ब। सो दिस इज अंडरग्राउंड स्टेम। नेक्स्ट इज अ ट्यूबर। ट्यूबर, पोटैटो का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे पोटैटो में कुछ आईज जैसे स्ट्रक्चर्स आपने देखे होंगे, ठीक है। ये आई जैसे स्ट्रक्चर्स क्या है, ये नोड है। ये जो आई है ये नोड होती है, तो नोड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेम, है ना। नोड के बीच में का जो पार्ट है उसे इंटरनोड बोलते हैं, तो नोड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेम। यहाँ पे एक बर्ड होती है, ये बर्ड फिर नई स्टेम और यहाँ पे लीव्स, नया प्लांट बनाएगी। तो आप देखते हो पोटैटो को कट करके आप ग्रो कर दो सॉइल में, तो वो पोटैटो से एक नया प्लांट बन जाएगा, न्यू प्लांट विल बी फॉर्म। ओके, सो दिस इज ट्यूबर। नेक्स्ट इज द कॉर्न। कॉर्न कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। एग्जाम्पल इज योर एमर्फोफैलस, यानी कि जमीकन, जिमीकन सुना, अमोर्फोफैलस होता है, क्रोकस, क्रोकस सेफ्रॉन हो गई, एंड योर कोलोकेसिया, अरवी, गुइया, है ना। ये सब कॉर्न है। कॉर्न में आपने गुइया का देखा है, देखो कोई ऐसी होती है, यहाँ पे ये जो होते हैं स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, नोड्स हैं इसके, है ना। ये नोड्स के बीच का जो पार्ट हो गया, ये सब पार्ट इंटरनोड हो गया। यहाँ पे नोड पे आपको ऐसी स्केल जैसी लीव्स भी मिलेंगी, वहाँ पे बर्ड्स भी होती हैं। तो ये आप ग्रो करा दीजिए सॉइल में, नया प्लांट यहाँ से बर्ड से नया प्लांट निकल आएगा। तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। किसी भी स्टेम से या लीव से नया प्लांट बन जाए तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। ओके, लास्ट इज द राइजोम। राइजोम का एग्जाम्पल है जिंजर, एंड अदर एग्जाम्पल इज द टर्मरिक। ठीक है, जिंजर में आपने देखा है, जिंजर अदरक सबने देखा है, इस तरह से ब्रांचेस निकली होती है, ये ब्रांचेस हैं अदरक की, है ना। और यहाँ पे आपको अदरक बीच बीच में आपको नोड्स मिलेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर्स, है ना। डार्क डार्क ब्राउन कलर का दिखता है, ये नोड्स होते हैं। सो अदरक में क्या है भाई, ये कुछ नहीं है, दिस इज द मॉडिफाइड स्टेम। और यहाँ से आपकी रूट्स निकल आएंगी, यहाँ से नया प्लांट स्टेम निकल आएगी, लीव्स निकल आएंगी, न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। ओके, so these all are the modified underground stem। ठीक है, जमीन के अंदर हो रही है, अंडरग्राउंड स्टेम है। क्लियर है। बल्ब, ट्यूबर, कॉर्म एंड राइजोम, they all are the underground modification of the stem। now we will move on to the subaerial। ठीक है, subaerial हम याद करेंगे रूट से, R O F F S S, रूट्स। R से हो गया आपका रनर, ऑफ से ऑफसेट, पूरा ऑफसेट हो गया, S से सर्कल, एंड S से स्टोलन। ठीक है, तो ये हम अब देखते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द डायग्राम, सॉरी नॉट एग्जांपल्स, दीज आर डायग्राम्स फॉर द अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, ऑलरेडी आई हैव कवर्ड राइट नाउ। ये ट्यूबर है आपका, ठीक है, ये राइजोम है, जिंजर है, ये दिस इज कोलोकेसिया, अरबी है। यहाँ पे ये आपको नोट्स दिख रही है, ये नोट्स हैं डार्क डार्क से कलर की। एंड दिस इज योर बल्ब, अनियन, बल्ब है, ये यहाँ से रूट्स निकल रही हैं, एडवेंटिशियस रूट्स। ये है स्टेम इसकी, ये स्टेम है, बहुत ही छोटी सी स्टेम है, रेडियो स्टेम है। ठीक है, ये हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल सी द सबएरियल मॉडिफिकेशन। यहाँ पे देखेंगे कि ना तो स्टेम पूरी हवा में है, ना ही अंडरग्राउंड में है, बीच में कहीं है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रनर्स। रनर्स में आपको ऐसा लगा भाग रही है वो स्टेम, रन कर रही है, जैसे साइनोडॉन की एग्जाम्पल इज द साइनोडॉन, जिसे हम दूब ग्रास भी बोलते हैं। ठीक है, साइनोडॉन में आप देखेंगे, ये सपोज दिस इज द सॉइल, यहाँ पे छोटी सी स्टेम है, पहले ये निकली बाहर, फिर ये ऐसे लेट जाएगी, ये बीच बीच में इसकी नोड्स होती है, यहाँ लेट गई, जैसे ये टच में वो आई या नोड इसकी सॉइल के कांटेक्ट में आई, यहाँ से रूट्स निकल आई, यहाँ से लीव्स निकल आई, फिर ये आगे बढ़ गई, फिर यहाँ से रूट्स निकल आई, यहाँ से लीव्स निकल आई, रन लाइक दिस। जहाँ से ये सॉइल के कांटेक्ट में आएगी, वहां से रूट्स निकल आएंगी, लीव्स निकल आएंगी। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द रनर, इट इज रनिंग, एक्चुअली इट इज रनिंग इन द ग्राउंड। तो जैसे ही नोड्स के कांटेक्ट में आ जाती है ग्राउंड के, वहीं पर नया
जो है ग्रास ग्रो कर जाती है, साइनोडॉन। दूसरा एग्जाम्पल है इसका ऑक्जेलिक्स, ऑक्जेलिस, ठीक है। सो दिस इज रनर। नाउ वी विल सी द ऑफसेट। ऑफसेट, ऑफसेट मतलब भाई इसने ऑफ कर दिया है, डेथ कर दी है। कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल वाटर हियासिंथ है, इकोनिया बोलते हैं इसको साइंटिफिक में, ओके, इकोनिया। एंड अदर एग्जाम्पल इज पिस्टिया। अब वाटर हियासिंथ में आप क्या देखोगे, दिस इज द, लेट मी टेक अनदर पिक, ये है पानी, वाटर हियासिंथ है, एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे कि ये जो स्टेम है, दिस स्टेम विल ग्रो इन एवरी डायरेक्शन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, है ना। और यहाँ पे ये रोजेट जैसा स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे ये जैसे इस पानी के टच में आई, फिर यहाँ से फिर से इधर इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, हर डायरेक्शन में ग्रो कर सकती है, ओके। और बहुत जल्दी जल्दी ये ग्रो करती है, इतनी जल्दी जल्दी ग्रो करती है कि ये सारा ऑक्सीजन और मिनरल जो होते हैं पानी के, वो ले लेती है। और यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ, जो भी एक्वेटिक लाइफ है, वो जो भी एनिमल रह रहे हैं पानी के अंदर, दे गेट डेड, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और वो मर जाते हैं। तो ये जो वाटर हियासिंथ है, इट कॉजेज टेरर इन बंगाल, टेरर इन बंगाल, ठीक है। ये जो वाटर हियासिंथ है, ये इंडिया की स्पीशीज नहीं है, ये बाहर से लाई गई है, बाहर से लाई गई थी क्योंकि इसके फूल जो होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये इतनी जल्दी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है इसका, इतनी जल्दी ये फैल जाता है कि भाई हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। आप इसे निकाल देंगे पानी से, फिर से ये वेजिटेटिवली प्रोपगेट कर जाएगा वेरी फास्ट। अब आप देखेंगे कि रनर्स और ऑफसेट में डिफरेंस क्या हुआ। यहाँ भी हमने देखा स्टेम आगे गई, पानी के कॉन्टेक्ट में आई, नया प्लांट बन गया। देखिए क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारी नोड्स होती हैं, बट यहाँ पे 2 ही नोड है, ठीक है। ये एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे, सो वी कैन से दिस इज ऑफसेट इज 1 इंटरनोड लॉन्ग, 1 इंटरनोड लॉन्ग, इतनी लंबी है, 1 इंटरनोड लॉन्ग है, ओके। एंड सेकंड डिफरेंस इज इट इज क्वाइट थिक, जो ऑफसेट होती है वो मोटी होती है, और रनर जो होती है ये बहुत पतली होती है, थिन होती है। थर्ड इज रनर्स टेरेस्ट्रियल प्लांट से मिलेगी आपको, एंड दिस ऑफसेट यू विल फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स मिलेगा। ऑफसेट हो गया, रनर हो गया। नाउ वी विल सी द स्टोलन। स्टोलन के बहुत अच्छे अच्छे से नाम है, याद कर लीजिए, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, मिंट। स्टोलन में आपको क्या दिखेगा कि जो स्टेम है वो थोड़ी सी ऊपर जाती है, लिटिल बिट वर्टिकली जाती है स्टेम, ठीक है। ये सपोज ये इधर स्टेम है, ये स्टेम लेट जाती है ऐसे, ठीक है, ये बैंड कर जाती है ऐसे। और जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में इसकी नोड आ गई, ये सपोज यहाँ पे नोड है, जैसे ही सॉइल के कांटेक्ट में आएगी, यहाँ से नई ब्रांचेस, नई लीफ और नया प्लांट मतलब निकल आएगा, ठीक है। तो ये है स्टोलन। शक्कर में आप क्या देखेंगे, शक्कर की जो स्टेम होती है वो अंदर जाती है अंडरग्राउंड, यहाँ से निकलती है एक ब्रांच और ये बाहर निकल आती है, ऑब्लिकली इट विल कम आउट, यहाँ से एक ब्रांच निकली, ये कम, इट कम्स आउट, पहले तो अंदर जाती है फिर ये बाहर निकल आती है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल शक्कर, ठीक है। तो शक्कर में आपने देखा कि जो स्टेम है अंदर गई, अंदर से बाहर की तरफ निकली, ठीक है। तो आपको दिखाई नहीं दे रही है एक्चुअली ग्रो कहाँ से हो रही है। आप इस स्टोलन में देख सकते हो कि जो बाहर ये ब्रांच है ये ऊपर हवा में है तो दिख सकती है, यहाँ पे आपको अंडरग्राउंड है ये ब्रांच, यू कैन नॉट सी दैट, ओके। और शक्कर का एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं, पी सी बी से, पी से पाइनएप्पल, सी से क्राइसेंथेमम, बी से बनाना, ठीक है। सो हियर इज द इमेज फॉर यू,
So first one, this is the runner, ये stolen है, and this is offset and this is sucker. रनर में आप देख सकते हैं कि कैसे ये रन कर रही है ग्राउंड में, और जैसे ही नोड इसकी टच कर रही है ग्राउंड को, वहां पे नई रूट और नया प्लांट निकल रहा है, ठीक है। और ऑफसेट में आप देख सकते हैं, ऑफसेट में आप क्या देख रहे हैं कि ये जो ऑफसेट है, ये ब्रांच निकली, ये थोड़ी थिक है, एक्वेटिक प्लांट में आपको मिलेगा। और वन मोर थिंग, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये रोजेट प्लांट होते हैं, ठीक है, ऐसा रोज जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है रोजेट प्लांट की होती है, ठीक है, ऑफसेट जो है रोजेट प्लांट में मिलेगा। देन स्टोलन में आप देख सकते हैं कि ये ब्रांच जो है ऊपर गई, पहले एक ब्रांच, सपोज ये वाली ब्रांच नीचे गिर गई, जैसे ये कॉन्टेक्ट में आई, यहाँ पे एक नया प्लांट बना दिया, ठीक है। ये है सकर, स्टेम अंदर गई अंडरग्राउंड, ये यहाँ से एक ब्रांच निकली, ये बाहर की तरफ निकल के आई हवा में और नया प्लांट बन गया वहां पे, isn't it? So this already we had discussed. Now this is the modification of this is subaerial modification, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन की। एरियल मॉडिफिकेशन कैसे याद रखेंगे? CPT, अब टी से दो हैं, ठीक है, याद रखिए। CPT एग्जाम सुना होगा, सीए वाले जो बच्चे जो सीए करना चाहते हैं उनके लिए होता है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। सी से होगा क्लैडो, पी से होगा फाइलोक्लिड, एंड टी से हो गए आपके टेंड्रिल्स, और टी से ही आपके हो गए थॉर्न। ओके, तो क्लैडोड सबसे, चलो पहले फाइलोक्लिड देखते हैं। फाइलोक्लिड में क्या दिखेगा कि जो स्टेम है फ्लैट हो गई है, दिस इज स्टेम, इट बिकम्स फ्लैट एंड इट हैज प्रिकल्स। ये तो ये प्रिकल्स कहीं लीव्स है। स्टेम तो ये है जो ग्रीन है, विच इज डूइंग द दिस इज द स्टेम, ओके, दिस इज ग्रीन इन कलर एंड दिस इज डूइंग द फोटोसिंथेसिस। तो डेजर्ट प्लांट में आपको ऐसा कुछ मिलेगा, एग्जाम्पल इज ओपेंशिया। So here the stem is modified to do the photosynthesis. Example is opentia. क्लैडोड में क्या दिखेगा आपको? क्लैडोड में एक मेन ब्रांच ऐसे निकलेगी, ये ब्रांच है, यहाँ पे छोटी छोटी ये स्टेम, ऐसी छोटी छोटी स्टेम्स, बहुत ही एक एक इंटरनोड लंबी, बस एक इंटरनोड लंबी, ये छोटी छोटी स्टेम्स होती है। They are also green in color. They also do photosynthesis. And the example is asparagus. Asparagus. Then tendrils and thorns. Thorns यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होती है, आप बोगनविलिया में देखेंगे, बोगनविलिया में ये जो बर्ड है ये बन गई है थॉर्न, ऐसे कांटे जैसे स्ट्रक्चर बन गए हैं, these are the thorns. थॉर्न्स जो होते हैं, कांटे जैसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो प्लांट अपने आप को बचाने के लिए ऐसे मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। टेंड्रिल्स में आप देखेंगे कि यही एक्सिलरी जो बर्ड है ये ऐसे रिबन जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, जिसको हम बोलते हैं टेंड्रिल। दिस टेंड्रिल इज जस्ट फॉर द सपोर्ट, इसको सपोर्ट चाहिए इस प्लांट को, तो ये टेंड्रिल जैसा इसने स्ट्रक्चर बना लिया है। एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस एज गार्ड फैमिली, वाटरमेलन, पंपकिन, ठीक है, ये इससे एग्जाम्पल है। और ग्रेप वाइन भी है इसका एक एग्जाम्पल, ग्रेप वाइन, ठीक है। थॉर्न्स का एग्जाम्पल हो गया बोगनविलिया। Isn't it? So these are the aerial modification, यानी कि एयर में है ये प्लांट और स्टेम मॉडिफाइड हो गई है, कुछ और काम कर रही है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोसिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे प्रोटेक्शन हो रहा है एनिमल से, यहाँ पे सपोर्ट के लिए टेंड्रिल जैसी बन गई है ना। So these are the aerial modifications of the stem, right? So let's see the image. So here you can see this tendrils, these are the tendrils. अब एक चीज इंपॉर्टेंट है कि टेंड्रिल्स और थॉर्न्स क्या ये होमोलोगस है या एनालोगस है? They are the homologous. Homologous organs हुए ना, देखते हैं क्यों? Because you have seen that कि ये they arise from the axillary bud, ठीक है। एक दोनों ही स्ट्रक्चर, या थॉर्न हो या टेंड्रिल हो, स्टेम के टेंड्रिल या थॉर्न, they arise from the same structure, that is the axillary bud, लेकिन दोनों के अलग अलग काम है। थॉर्न का कुछ और काम है
और टेंडल का कुछ और काम है, काम अलग है, लेकिन ओरिजिनेट तो ये एक ही चीज से हुए, वो एक्सिलरी वर्ड से। ठीक है, तो वी कैन से दे आर द होमोलॉगस ऑर्गन्स, राइट। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल फाइलोक्लेट ओपेंशिया। ये फाइलोक्लेट दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर की जो स्टेम है, फ्लैट है, इसको फोटोसिंथेसिस करनी है तो ये ऐसी हो गई है, ठीक है। और दिस इज द क्लैडोड, ये छोटी छोटी क्या है, ये नथिंग बट दे आर द स्टेम्स, छोटी छोटी स्टेम्स है, वन इंटरनोड लंबी बस। एन एग्जांपल इज दी एस्परगिलस। नाउ वी विल सी द फंक्शंस ऑफ द स्टेम। लास्ट है ना, ये लास्ट है कि भाई फंक्शन क्या है स्टेम का। अभी सब कुछ आपने ऑलरेडी कवर कर लिया, लेट्स जस्ट रिवाइज कि स्टेम में क्या होता है। स्टेम के पास क्या है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये जनरल सी बात है ना। इट कनेक्ट वाटर एंड मिनरल्स। देखिए ये रूट से जो पानी आया, अब रूट से जो पानी ऊपर तक जा रहा है वो स्टेम के थ्रू जा रहा है। It contains water and minerals. Then it store food as we have seen in Apanchia. वो अपने अंदर खाना स्टोर करके रखता है, ये Apanchia. It store food. Then it support. Support अभी देखा ना tendrils, है ना, ऐसे tendrils जो structures थे वो support में help करते हैं. Then protection. Thorns जो है वो protect करने में help कर रहे हैं. वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अभी आपने देखा कि वाटर यासिन को अगर काट के लगा दो, वेजिटेटिव भी ग्रो कर जाएगा, तो स्टेम हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन आल्सो। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द स्टेम, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द लीफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।